Today we have to start with the topics of CRPC. What are the various stages in CRPC and what are the various topics that we have to cover in CRPC. So let us start with that. पहले थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूँ कि प्रोसीडिंग्स क्या क्या होते हैं. उसके बाद मैं लास्ट में आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स डिक्टेट करा दूंगा. देखो, CRPC इज अ क्रिमिनल लॉ and it is a procedural law. You call it procedural or adjective law. And whenever you talk about any procedural law, it has to be read together with some substantive law. For example, you have got, this is CRPC. For example, you have got the IPC. Now, an offense will be defined in the IPC, and the various ingredients of an offense you will find in the IPC. But if a person commits the violation of the IPC, then he has to be criminally prosecuted. And for criminal prosecution, the CRPC is there, which provides as to what will be the stages, what will be the method of prosecuting a person. Suppose A commits murder of B. Now, whether he has committed murder or not, for that you have to examine the elements of section 300 IPC. So, means there are various dimensions of section 300 IPC. For example, the actus reus, that is, it was A's act which resulted into the death of B. It was A's act or omission which resulted into the death of B. Now, this element actus reus has to be proved. And similarly, the mens rea, for example, A had the intention to cause the death of B. For example, A had the intention to cause such bodily injury to B as is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. ये सब आपको सेक्शन 300 के अलग अलग क्लाउजेज में मिल जाएंगे. So means in order to prove the liability for murder, you have to prove the actus reus and the mens rea. Now here the point is that under criminal jurisprudence, every person is presumed to be innocent unless proven guilty. So A will also be presumed to be innocent unless proven guilty. जब तक A guilty prove ना हो जाए तब तक उसको हम innocent presume करके चलेंगे. That is the criminal jurisprudence. तो हम initially A को innocent मान के चलेंगे. The burden of proving BOP, that is the burden of proof, to prove the guilt of A will lie upon whom? The burden of proving the guilt of A will lie upon whom? It will lie upon the prosecution. The burden of proving the guilt of A will lie upon the prosecution. Prosecution को prove करना पड़ेगा कि A has committed murder, and for that prosecution will have to prove, number one, the actus reus, the causation of death by A, and the mens rea, that is the intention that I was talking about right now. ठीक है. अब ये जो actus reus और mens rea है, इसको प्रूव करने के लिए prosecution क्या करेगा? What will the prosecution do to prove the actus reus and mens rea? It will collect evidences. It will collect evidences and it will prove those evidences in the court. So the entire process of collection of evidences and the entire process of taking the matter to the court and the judicial proceedings which happen after the matter has gone to the court, including the trial, wherein those matters which are collected, those evidences which are collected by the prosecution will be proved by the prosecution and will be disproved by the defense. And the defense can also prove any evidences that they have. डिफेंस कह सकता है कि भाई जिस समय मर्डर हुआ बी का उस समय तो ए था ही नहीं वहाँ पे, ए वॉज इन सम डिफरेंट सिटी. तो डिफेंस कैन रेज द प्ली ऑफ एलिबाई.
उसको एलिबाई बोलते हैं कि वो वहाँ नहीं था, कहीं और था, so that is alibi. तो डिफेंस भी अपने डिफेंस में प्रूव कर सकता है दैट एलिबाई दैट ही वाज प्रेजेंट समवेयर एल्स. This entire process of collection of evidences and the process of taking the matter to the court and the judicial proceedings, which ultimately culminates in the trial and the final judgment, this entire process is not provided in the IPC. This entire process is provided in the CRPC, the Code of Criminal Procedure, 1973. Is that fine? So means without the CRPC, IPC will become useless. क्योंकि आईपीसी आपको ये तो बता देगा कि उसने मर्डर किया है कि नहीं किया, उसके लिए क्या एलिमेंट्स प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन वो एलिमेंट्स प्रूव कैसे करोगे? आईपीसी विल टेल यू what are the ingredients of murder and what are the ingredients that you have to prove in order to prove murder, to make him liable for murder. But IPC does not tell you as to what is the procedure for the proving and collecting of the evidences and then the proving and disproving of the facts. That is provided by the CRPC coupled with the Evidence Act. The proof and disproof, etc., will be covered by the Evidence Act, and the collection of the evidences and the judicial proceedings, that entire process is covered by the CRPC. So means IPC, if you see, IPC is the parent law. IPC को आप कह सकते हैं, it is the substantive law, it is the parent law, and the CRPC and the Evidence Act. These are complementary laws. Without applying these laws, you cannot prove the guilt of the accused. So IPC therefore becomes useless if you do not apply CRPC and evidence. तो आईपीसी का जो इफेक्टिवनेस है वो इसी बात से आएगा कि आप सीआरपीसी में एविडेंसेस कलेक्ट करोगे, सीआरपीसी में आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करोगे, और एविडेंस एक्ट में आप फैक्ट्स को प्रूव या डिसप्रूव करोगे. What facts can be proved means whatever is relevant can be proved. So what facts are relevant, what facts are irrelevant, what evidences are admissible, what evidences are inadmissible, how to prove the examination in chief, the cross-examination, the re-examination, apart from that, the proving of the documents, etc., etc., proving of electronic evidence, everything will fall under the Evidence Act. ये सब एविडेंस एक्ट में फॉल करेंगे, और जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है of collection and the proving of evidences, that will fall in the CRPC. ठीक? And that is why we say that CRPC and evidence, which are procedural laws, they are adjective laws and they are complementary to the IPC. ठीक है. सिविल लॉ में आप कहते हैं ना ओबी जैसे रेमीडियम, तो सिविल लॉ में आप कहते हैं ना ओबी जैसे रेमीडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. तो अब राइट तो है, प्रोसिक्यूशन का राइट है आईपीसी में कि आप अक्यूज्ड को पनिश कर सको, बिकॉज he has prosecution alleges that he has committed that offense. बट वो राइट प्रोसिक्यूशन का कैसे एस्टैब्लिश होगा? बिना सीआरपीसी और बिना एविडेंस के तो नहीं एस्टैब्लिश होगा. And therefore CRPC and Evidence Act comes to the aid of IPC when it comes to proving the guilt of the accused. And that is where that IPC coupled with CRPC and evidence makes the law comprehensive, makes the process of proving the guilt of the accused comprehensive. तो एक सेंटेंस लिखें आप प्लीज. IPC is the substantive law. IPC is the substantive law. It can be called the parent law.
under which the ingredients of an offense are provided. It can be called the parent law under which the ingredients of an offense are provided. Ingredients of the offense are provided. But these ingredients need to be proved by the prosecution. These ingredients need to be proved by the prosecution, and the accused also need to be proved by the prosecution, and the accused also has to be given a reasonable opportunity. The accused also has to be given a reasonable opportunity to prove evidences in his own favor in order to prove his innocence. To prove evidences in his own favor in order to prove his innocence. The entire process, next sentence, the entire process of collection of evidences and judicial proceedings is covered by the CRPC, and the entire mechanism of proving or disproving the facts and evidences, proving or disproving the facts and evidences is provided under the Evidence Act. Under the Evidence Act. Next sentence. Therefore, the CRPC and the Evidence Act are called the complementary laws. CRPC and the Evidence Act are called comprehensive laws. Complementary laws are called complementary laws, which provide the comprehensiveness or completeness, to the IPC. IPC would have been, next sentence, IPC would have been useless or purposeless. IPC would have been useless or purposeless without the CRPC and the Evidence Act. Useless or purposeless without the CRPC and the Evidence Act. फाइन, मतलब कहने का मतलब ये है कि आईपीसी में आपको बताया गया कि भाई ये ऑफेंस है और इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं. अब किसी ने ए ने बी का डेथ काउज कर दिया तो अब उसने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है या मर्डर किया है, किस सेक्शन में लायबल होगा, या फिर 304A में रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से डेथ काउज करने के लिए लायबल होगा, तो किस सेक्शन में वो लायबल होगा वो डिपेंड करेगा कि उसने मर्डर कैसे किया. तो सबके इंग्रेडिएंट्स इन सब सेक्शंस में दे रखे हैं. अगर 300 प्रूव हो जाएगा तो मर्डर के लिए लायबल होगा, 299 प्रूव हो जाएगा
तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा। अगर 304A प्रूव हो गया तो डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के लिए लायबल हो जाएगा। अगर 304B प्रूव हो गया तो डाउरी डेथ के लिए लायबल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब हर बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रूव हो जाएगा, हर बार ये शब्द यूज कर रहा हूं, अगर ये प्रूव हो गया तो प्रूव करने का जो प्रक्रिया है, प्रूव करने की जो प्रक्रिया है, प्रूव करने का जो प्रोसेस है, वो आईपीसी में नहीं लिखा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर प्रूव हो गया तो ये प्रूव कहां पे होगा? प्रूव होगा एविडेंस एक्ट में। प्रूविंग और डिस्प्रूविंग द फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स विल हैपन इन द एविडेंस एक्ट। प्रूव करने का जो प्रोसेस होगा, the mechanism of bringing the matter to the court, collection of evidences, the judicial proceedings, that is there in the CRPC. So this triangle I will suggest, this trinity, इसको कहते हैं trinity. This triangle where on the one vertex you have IPC, on the other you have CRPC, and on the third you have the Indian Evidence Act. This trinity is what makes things complete. Without Evidence Act, IPC and CRPC are useless. Without CRPC, Evidence Act and IPC are useless. And without IPC, CRPC and Evidence Act are useless and purposeless. तो ये तीनों मिलके ही आपका पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। ये तीनों मिलके ही आपका क्राइम डिटेक्शन एंड क्राइम के लिए कन्विक्शन, पनिशमेंट एटसेट्रा का जो पर्पस है उसको कंप्लीट करते हैं। इज दैट फाइन? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू अबाउट द कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ दीज थ्री लॉज। So right now we are talking about CRPC, but always remember that IPC has to be in your mind and Evidence Act has to be in your mind, because in isolation CRPC alone will not be sufficient. ये दोनों भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि CRPC पढ़ते समय हम IPC भी पढ़ेंगे और एविडेंस एक्ट भी पढ़ेंगे। हम जब जिस सब्जेक्ट की बारी आएगी तभी पढ़ेंगे उसको। हमारे यहाँ जो कोर्स ऑफ सब्जेक्ट्स है सीक्वेंस, उसी में पढ़ेंगे, लेकिन दिमाग में हमेशा रखना कि CRPC हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि कोई एक ऑफेंस हो गया है, ऑफेंस प्राइमा फेसाई सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन या सेक्शंस में ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को हमको प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है और डिफेंस को, अक्यूज को डिसप्रूव करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसीडिंग्स होंगे एविडेंस कलेक्ट करने के, उसके लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किस तरह के होंगे, उसके लिए अक्यूज का अरेस्ट हो सकता है कि नहीं, अगर अरेस्ट हो गया तो अक्यूज को बेल देंगे कि नहीं, बेल देंगे तो किन ग्राउंड्स पे बेल देंगे, अक्यूज के खिलाफ चार्जशीट कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, चार्जशीट कितने तरह के होते हैं, ये सारी बातें। मैजिस्ट्रेट के पास मैटर जाएगा तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब लेगा, ठीक, उस कॉग्निजेंस लेने के बाद का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी बातें, ट्रायल कब स्टार्ट होगा, चार्ज फ्रेमिंग कब होगा, ट्रायल कब स्टार्ट होगा, ये सारी बातें CRPC में दी गई है। ट्रायल का मैकेनिज्म क्या होगा, हाउ इज अ कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल डन, हाउ इज अ वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट डन, हाउ इज अ वारंट ट्रायल अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट डन, हाउ इज अ समन्स ट्रायल डन, हाउ इज अ समरी ट्रायल डन। This entire process is provided in the CRPC. Is that fine? So that is the relevance and importance, the significance of CRPC in our entire criminal jurisprudence. And you must keep in mind one thing before I start with the topics. You must keep in mind one thing, be it any law, be it IPC, CRPC, evidence, any law, CPC, whatever. Now, right now I am concerned with CRPC. Be it any law, all laws have to subscribe to the fundamentals of the Constitution. No law can be
devoid of the constitutional principles. Because the constitution is the grand norm, everyone knows that. The constitution is the grand norm, that is the ultimate norm, which is the prescribing norm for all the other laws. Means it prescribes the principles for the other laws, and no law can afford to violate the constitutional mandate. So CRPC also has to subscribe to the constitutional mandate, the constitution fundamental principles. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. I'll be discussing this topic with you, constitutional and the jurisprudential essence of CRPC. After I complete the topic listing, then I'll be discussing with you the constitutional essence of CRPC and thereafter the jurisprudential essence of CRPC. So when I do that, there I will talk about the constitutional mandate of CRPC. Is that fine? तो इसलिए उस पर मैं अभी नहीं जा रहा, बस मैंने मेंशन कर दिया है. पहला टॉपिक ही मेरा होगा द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस एंड द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ सीआरपीसी. उसके बाद बाकी टॉपिक्स आएंगे. एक बात और ध्यान रखिएगा कि हर लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है. पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया, लॉ के जो शब्द हैं या प्रोविजंस हैं उसमें कुछ एम्बिग्विटीज हो सकती है, कुछ अनसर्टेनिटीज हो सकते हैं. More than one interpretations may be possible of a particular term used in a provision. There may be more than one interpretations possible. So we have also to understand how do we come to realize as to which interpretation will be the most suited for that particular term. अब एक टर्म है, कोई एक टर्म है, उसके 3 इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है. तो अब इनमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन उस टर्म को दिया जाए, कौन सा इंटरप्रिटेशन हम अडॉप्ट करें उस टर्म के लिए, वो भी हमको समझना होगा. एंड दैट इज रिलेटेड टू रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. एंड वन बेसिक रूल ऑलवेज रिमेंबर प्लीज. बहुत सारे रूल्स हैं, एक बेसिक रूल हमेशा याद रखिएगा, एंड दैट इज द रूल ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस, द रूल ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन. मीन्स इफ देर आर 3 interpretations possible, adopt that interpretation of that term or provision which is the most in line with the purpose of CRPC. आप वो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करो जो सीआरपीसी के पर्पस को सबसे ज्यादा सर्व करता हो. ठीक है, उसके लिए हमको पहले सीआरपीसी का पर्पस समझना पड़ेगा. जब तक आपको सीआरपीसी का पर्पस पता नहीं होगा तब तक आप पर्पसिव इंटरप्रिटेशन भी नहीं समझोगे. और सीआरपीसी का पर्पस हम कब समझेंगे? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस पढ़ेंगे तब हमको सीआरपीसी का पर्पस समझ में आएगा. एंड विद सीआरपीसी का पर्पस देन नेक्स्ट छोटा सा एक डिस्कशन 5 मिनट का करूंगा, दैट इज अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. बहुत सारे रूल्स हैं. वन मेन रूल दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड इज पर्पसिव इंटरप्रिटेशन. तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 2-4 मिनट के लिए, एंड देन आई विल मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक्स. ठीक है, देखो सीआरपीसी इज रिलेटेड टू एन ऑफेंस. And I am not saying that it is only IPC with which CRPC applies. और भी criminal offenses हो सकते हैं ना. पॉक्सो है, बहुत सारे और criminal offenses हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस तरह के बहुत सारे offenses हैं. तो CRPC उन सब के साथ जाता है. Unless a separate procedure is provided for a law, CRPC is a common procedural law which goes with all the other substantive criminal laws. IPC is one main substantive criminal law, but there may be so many other criminal substantive laws also. POCSO is one good example. So CRPC goes with all the criminal substantive laws unless for that substantive law some different procedure has been provided. तो ये भी ध्यान रखिएगा. मैंने IPC से रिलेट किया, लेकिन और बहुत सारे लॉज हो सकते हैं
जो क्रिमिनल लॉ हैं और सब्सटैंटिव लॉ हैं उनसे भी सीआरपीसी रिलेट करेगा. फाइन. Now, whenever an offense is committed, right now I am talking about IPC. Whenever an offense is committed, offense के बाद next पहला step क्या होगा? Next पहला step क्या होगा? या तो आप FIR करोगे, या फिर आप कंप्लेंट फाइल करोगे, और या फिर आप मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दोगे. ठीक, तो यही वहीं से तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगे ना. देखो, पूरे सीआरपीसी को हमने ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. प्री ट्रायल, ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल. The whole CRPC has been divided into pre-trial, trial and post-trial. Fine? Now I'll first focus upon pre-trial. Let us first focus upon pre-trial. And then I'll one by one talk about trial and post-trial. Fine? Now, when you say pre-trial, what do you mean by that? Before the trial. Before the trial has started. The proceedings before the trial has started. Okay? Trial is what? Trial is the stage where proving and disproving of evidences takes place. Trial is the stage where proving and disproving of evidences takes place, where the Evidence Act comes into picture, because you will be proving and disproving according to the rules of evidence. The process of trial will be given in the CRPC. क्या sequence होगा trial का, that will be given in the CRPC, but the manner how you prove and disprove, etc., who can be a witness, how a document can be proved, all those things are given in the Evidence Act. तो ट्रायल तो बाद की बात है, उसको भी रहने दो. Let us first focus upon pre-trial. अब यहाँ पे आप सोचिए, think about this, that an offense has been committed. अब after the commission of the offense, there can be 3 proceedings that can be initiated to bring the culprit to justice. There can be 3 proceedings. One is the information, that is the FIR. You file a first information report put before the police officer. The second one is a complaint. You file a complaint before a judicial magistrate. And the third one is an information, that is you file an information before a magistrate. Means you somehow inform the magistrate about it. एक तो होता है रिटन कंप्लेंट, प्रॉपर फॉर्मल रिटन कंप्लेंट, वो भी मैजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा. और कई बार आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं मैजिस्ट्रेट को, बाकी का प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट को करना है. उसमें राइटिंग में आप कुछ कंप्लेंट नहीं फाइल करते, आप सिर्फ इन्फॉर्म कर देते हो, या मैजिस्ट्रेट खुद भी उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो खुद भी एक्शन ले सकता है. न्यूज़पेपर में दिख जाए, टेलीविजन मीडिया पे कहीं कुछ दिख जाए, या मैजिस्ट्रेट ने खुद ही ऑफेंस होते हुए देख लिया, तो दैट इज इंफॉर्मेशन. जब FIR होगा, व्हेन FIR विल टेक प्लेस, तो सबसे पहले आफ्टर द FIR इन्वेस्टिगेशन विल बी डन. After the FIR, investigation will be done. The investigation is a long process and several things take place in the course of investigation. तो उन details पे अभी मैं नहीं जा रहा. I'm not going into the details of investigation. Broadly, if you see, the police will go to the spot. The police will collect forensic evidences. है ना? If there is a dead body, the police will send the dead body for post-mortem. Police या फिर executive magistrate
will send the dead body for post-mortem. Fine. The police may arrest the accused, or the police may require the accused under section 160 CRPC to appear before the police and answer their questions. The police may summon means order witnesses to be present before itself for examination. The police may examine the accused, the police may examine the witnesses, the police may get the statements of the witnesses and the accused, the confession of the accused, recorded before a judicial magistrate under 164 CRPC. magistrate के सामने पुलिस अक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकता है, मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस इंपॉर्टेंट प्राइम विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है. ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे, पुलिस सर्च एंड सीजर कर सकता है. इट कैन गो टू अ प्लेस एंड सर्च एंड सीज थिंग्स फ्रॉम देयर. पुलिस विल प्रिपेयर अ साइट प्लान, पुलिस विल टेक फोटोग्राफ्स. तो इस तरह के बहुत सारे काम पुलिस कर सकता है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एंड द पर्पस इज सिंपल. Purpose is to find evidences of the crime. Purpose is to find out the evidences of the offense that has been committed. So investigation will take place and it may take time. It may take 1 month, 2 months, 3 months. Broad target is कि 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है. पता नहीं कितने कितने महीने लगा देते हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में. With proper justifications, they will take a lot of time to complete the investigation. After the investigation is complete, means evidences have been collected, then the police officer will file a police report. After that, the police officer will file a police report. I will write that in short as PR. I will write that in short as PR, police report. पुलिस रिपोर्ट दो तरह का होगा. या तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके ये कंक्लूड कर लिया कि नहीं इस अक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया. पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये कंक्लूड कर लिया कि नहीं इस अक्यूज ने ये वाला ऑफेंस नहीं किया. तो उस केस में पुलिस रिपोर्ट लगाएगा, लेकिन उसको कहेंगे आप क्लोजर रिपोर्ट. दैट इज कॉल्ड अ क्लोजर रिपोर्ट. कई बार उसको फाइनल रिपोर्ट भी बोल देते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है आई एम क्लोजिंग द केस अगेंस्ट दिस अक्यूज्ड बिकॉज इन माय इन्वेस्टिगेशन आई हैव फाउंड दैट ही हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस. देखो ये सब आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा. आज मेरी सीआरपीसी की पहली क्लास है एक तरह से, तो अभी तो मैं आपको बस फैमिलियर करने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा सा टॉपिक्स में आपको ले जा रहा हूँ कि किस टॉपिक में क्या है रिलेटेड, इतना ही बता रहा हूँ शॉर्ट में. तो इट इज़ एन ओरिएंटेशन ऑफ सीआरपीसी एक्चुअली विच इज़ गोइंग ऑन. बट वंस वी गेट इनटू द सीआरपीसी इन डिटेल्स, so this police report alone will take me around 3 to 4 classes to complete. 3-4 क्लास सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पे लग जाएंगे. अकेला इन्वेस्टिगेशन पे कम से कम 30 से 35 क्लासेस लगेंगे, 40 भी लग सकते हैं पूरा इन्वेस्टिगेशन पढ़ाने में. एफआईआर पे मुझे 3-4 क्लास लग जाएंगे सिर्फ एफआईआर पे. तो वो तो जब डिटेल में जाएंगे तब पढ़ाऊंगा आपको. पूरा सीआरपीसी कंप्लीट कराने में 120 से 125 क्लास कम से कम लगेंगे मुझे, कम से कम, अगर 2 घंटे की क्लास लेता हूं तो. समझ रहे हैं? तो इसीलिए अभी आपको बस फैमिलियराइज करना है अपने आप को. आप में से कई लोगों ने सीआरपीसी पढ़ रखा होगा पहले से, अपने कॉलेज में तो पढ़ा होगा या अपने आप भी पढ़ा होगा, तो थोड़ी फैमिलियरिटी आपको दिख रही होगी और जो मैं बता रहा हूँ आपको लग रहा हो कि हाँ सब मुझे पता है. और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पहली बार मेरे पास पढ़ रहे हो तो यहीं पे फैमिलियरिटी बनाने की कोशिश करो. जब पूरा सीआरपीसी पढ़ लोगे तो सीआरपीसी आपका फ्रेंड बन जाएगा. इट विल बिकम योर फ्रेंड. ठीक है? अब जैसे मान लो छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम अ पुलिस ऑफिसर, यू कम एंड फाइल एन इंफॉर्मेशन बिफोर मी, आई विल टेक इट एज एन एफआईआर. अब यू मे आस्क मी द क्वेश्चन, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली दे नेवर टेक एन एफआईआर. We file the complaint and they will keep the complaint with themselves, and after some preliminary investigation they
lodge the FIR after a few days. ऐसा होता है प्रैक्टिस में. So that is wrong. Simple answer है that is wrong. Excepting in a very few cases, medical negligence etc. सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी केस में क्लियरली बोल रखा है. आई थिंक इट इज 2014. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल से 2014 का केस है, 2014 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल रखा है कि आपको FIR लॉन्च करना आपकी ड्यूटी है. लेकिन पुलिस फिर भी क्या करती है कि पहले कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर उनको लगता है ये केस मेड आउट है, प्राइमा फेसाई केस बनता है, तब वो उस कंप्लेंट को FIR में कन्वर्ट करते हैं. तो इस तरह के बहुत छोटे बहुत सारे मैटर्स है. आपने पुलिस को फोन करके बता दिया, सिर्फ फोन पे बता दिया कि इस जगह पे ये मर्डर हो गया है. यू जस्ट कॉल्ड देम अप एंड टोल्ड देम दैट एट सो एंड सो प्लेस murder has taken place. The police asked you, what is your name, who are you? You say, no, I will not tell you. हालांकि अब तो मोबाइल के थ्रू पता चल जाता है, लेकिन मान लो आपने किसी PCO से फोन कर दिया लैंडलाइन से, तो तब तो पुलिस को नहीं पता चलेगा ना कि आप कौन हैं. तो आपने अपना डिटेल नहीं बताया. अब क्या इसको भी FIR माना जाएगा? Will this also be considered to be an FIR? Now this is called a cryptic information. And this will not be considered to be an FIR. When the police comes to you there and if you meet them and you are willing to give the detailed information, then your information can be converted into an FIR. ठीक. तो इस तरह के बहुत सारे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको सब बताए जाएंगे as and when we come into the details of the discussion. And CRPC is a very interesting subject. Means a very interesting law. इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और थोड़ा एडवेंचरस भी है. मज़ा भी आएगा आपको. मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में. एनीवेज, तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जैसे मैं कुछ बता रहा था आपको. अब आप इंफॉर्मेशन लेकर आए मेरे पास, आप इंफॉर्मेशन लेके मेरे पास आए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने उसको FIR में कन्वर्ट किया. अब मेरी पहली ड्यूटी क्या होगी? 2 ड्यूटीज है मेरी. एक ड्यूटी तो होगी कि मैं उस FIR की कॉपी मैजिस्ट्रेट, एरिया मैजिस्ट्रेट के पास भेजूं. जो मेरे एरिया का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, उनके पास मैं उस FIR की कॉपी भेजूं. उस कॉपी को जब मैं भेजूंगा, उसमें लिखा होगा कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं कि नहीं, और कौन. मैं पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस, मैं SHO हूं, तो कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है. मैं खुद करूं तो अपना नाम लिखूंगा, अगर किसी सबऑर्डिनेट से करवा रहा हूं तो उसका नाम लिखूंगा, अगर नहीं कर रहा हूं तो वो भी लिखूंगा, और रीजन लिखूंगा क्यों नहीं कर रहा हूं इन्वेस्टिगेशन. तो लेकिन FIR की कॉपी मुझे मैजिस्ट्रेट के पास भेजनी पड़ेगी. ये इसको कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन अकरेंस. घटना हुआ है उसका रिपोर्ट. तो दैट इज कॉल्ड अकरेंस रिपोर्ट. ठीक है. occurrence report. ठीक है. तो इस तरह की बहुत सारी छोटी बातें हैं जो CRPC में है. occurrence report कितने लोगों को पता है? How many of you are aware about occurrence report? Good, very good. 10-12 people, very good. So after that the investigation and thereafter the police report will be filed. So police report is of 2 kinds. One will be police report wherein the police officer writes that the accused has not committed the said offense. So according to me, he shall not be prosecuted. और दूसरा होता है where after investigation the police officer has got sufficient evidences against that accused with respect to that offense, and therefore his opinion is that this accused has committed the offense. Prima facie, in my opinion, this accused has committed the offense and therefore he shall be prosecuted. That is called a charge sheet. उसको कहते हैं चार्ज शीट, और हिंदी में उसको चालान भी बोलते हैं. ठीक. तो पुलिस रिपोर्ट 2 तरह का होगा. ठीक. अब मान लो पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर ने कह दिया कि मैं केस को क्लोज कर रहा हूं, आई एम फाइलिंग द क्लोजर रिपोर्ट because I have not found sufficient prima facie evidences against the accused.
अब मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय दैट ओपिनियन। मैजिस्ट्रेट चाहे तो क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी अक्यूज के खिलाफ कॉग्निजेंस ले सकता है, जैसे वो हुआ था ना उसमें आरुषि मर्डर केस में। देयर वाज अ क्लोजर रिपोर्ट एंड डिस्पाइट द क्लोजर रिपोर्ट द मैजिस्ट्रेट हैड टेकन कॉग्निजेंस अगेंस्ट द पेरेंट्स ऑफ आरुषि। ठीक, तो मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द पुलिस। पुलिस हैज अप्लाइड हिज ओन एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, एग्जीक्यूटिव माइंड, और मैजिस्ट्रेट इज अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड। जितने फैक्ट्स पुलिस के पास हैं उसको लगता है कि नहीं नहीं इतने एविडेंसेस पे अक्यूज के खिलाफ सफिशिएंट केस नहीं बनता, और उन्हीं पे एविडेंसेस के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट को लग सकता है कि केस बनता है, मैं तो प्रोसिक्यूट करूंगा। ठीक, लेकिन मान लो मैजिस्ट्रेट ने भी ओपिनियन बना लिया कि नहीं नहीं इस केस में अक्यूज के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, तो मैजिस्ट्रेट ने भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है क्लोजर रिपोर्ट है तो मैं इस पे कॉग्निजेंस नहीं लूंगा, केस को क्लोज करूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैजिस्ट्रेट मे गो फॉर बोथ। आपको अभी क्या लिखना है पता है? जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ वो ना भी लिखो ना, चल जाएगा। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना स्टेजेस, ये आपको लिखना है, और जो बीच बीच में बोल रहे हैं चाहे तो आप लिखो चाहे तो ना लिखो, क्योंकि वो आगे तो बहुत डिटेल में होना ही है हमारा। अभी थोड़ा सा बस आपको अपनापन डेवलप करना है सब्जेक्ट के साथ, लॉ के साथ। अब यहां पे क्या होगा ना, जब मैजिस्ट्रेट ने कह दिया कि कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, नो कॉग्निजेंस, आई एम नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस, मैजिस्ट्रेट ने कह दिया मैं कॉग्निजेंस नहीं लूंगा, मैं प्रोसिक्यूशन नहीं करूंगा, तो वहां पे द इन्फॉर्मेंट हैज अ राइट, इन्फॉर्मेंट जिसने एफआईआर लॉन्च किया था, ही गेट्स अ राइट टू फाइल अ प्रोटेस्ट पिटिशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटेस्ट पिटिशन। सिंपल मीनिंग है कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, मैंने इंफॉर्मेशन दिया था, आप कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, तो मैं आपके इस डिसीजन के खिलाफ कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, मैं प्रोटेस्ट करता हूं, मेरी सुनवाई की जाए। आई मस्ट बी हर्ड एज टू व्हाई कॉग्निजेंस शैल बी टेकन। सो अगर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया मैजिस्ट्रेट ने, तो यहां पे एक प्रोटेस्ट पिटीशन का भी पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अगर पुलिस ऑफिसर चार्जशीट भी लगा दे ना, ये भी ध्यान रखना, इफ द पुलिस ऑफिसर फाइल्स अ चार्जशीट ऑल्सो, still the magistrate is not bound by the opinion of the police officer on the same evidences on which the police officer filed the charge sheet, that is in my opinion the accused has committed the offense. On the same evidences the magistrate can come to the conclusion that he has not committed the offense, there is no prima facie case against him, and therefore I will not take cognizance. So means despite a charge sheet the magistrate can decide not to take cognizance, and despite a closer report, the magistrate can decide to take cognizance. So magistrate is not bound by the police report. ठीक है? अब if the magistrate has decided not to take cognizance, then the informant, the one who had filed the FIR, he can file a protest petition. And on the protest petition there will be a hearing, and after the hearing the magistrate can now decide to take cognizance, or he may still decide not to take cognizance. Hearing करने के बाद magistrate चाहे तो decide कर सकता है कि भाई मैं cognizance नहीं ले रहा इसमें, और या फिर कह सकता है कि नहीं नहीं मैं cognizance लूंगा। ठीक है? उसमें वो जो आरुषि मर्डर केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। ठीक, क्योंकि उस केस में अक्यूज थे राजेश तलवार और नुपुर तलवार, इनके फेवर में मतलब आई एम नॉट सेइंग बायस्ड, ये बायस्ड नहीं था सीबीआई, जेन्युइनली उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। दे डिड नॉट फाइंड सफिशिएंट एविडेंसेस अगेंस्ट देम, सो द सीबीआई फाइल्ड अ क्लोजर रिपोर्ट। व्हाट राजेश तलवार एंड नुपुर तलवार डिड वाज दे फाइल्ड अ प्रोटेस्ट पिटीशन अगेंस्ट दैट। They filed a protest petition against the closure report कि नहीं नहीं हमारी बेटी का मर्डर हुआ है, तो जो अक्यूज है उसके खिलाफ आप कॉग्निजेंस लीजिए और प्रोसीडिंग्स करिए। जब क्लोजर रिपोर्ट पे मैजिस्ट्रेट के सामने हियरिंग हुआ
जब क्लोजर रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट के सामने हियरिंग हुआ तो मजिस्ट्रेट ने पाया कि प्राइमा फेसाई एविडेंसेस इनके खिलाफ ही है. द मजिस्ट्रेट फाउंड दैट प्राइमा फेसाई एविडेंसेस आर अगेंस्ट द टू एप्लीकेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट पिटिशन, टू पिटिशनर्स. एंड मजिस्ट्रेट ने प्राइमा फेसाई एविडेंस के खिलाफ के बेसिस पर ये जो प्रोटेस्ट पिटिशनर्स थे, नुपुर तलवार एंड राजेश तलवार, उनके ही खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया. ठीक. And the proceedings started. They were prosecuted in the trial court. They were convicted, but ultimately in the High Court they were acquitted, and now the matter is pending in the Honorable Supreme Court. Is that fine? So, matlab, it is very interesting also. It is very interesting also. So, anyways, the magistrate decides not to take cognizance. The informant can file a protest petition, or the magistrate may decide to take कॉग्निजेंस. मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस भी ले सकता है. अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया, प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद भी नहीं लिया, तो कहानी वहीं खत्म. अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और प्रोटेस्ट पिटीशन की हियरिंग करने के बाद भी नहीं लिया, तो स्टोरी वहीं खत्म. अब इन्फॉर्मेंट के पास क्या ऑप्शन बचेगा? पुलिस वाला मैटर तो क्लोज हो गया, तो वो चाहे तो कंप्लेंट फाइल कर ले मजिस्ट्रेट के पास, कंप्लेंट पे प्रोसीडिंग्स करा ले. ठीक है. दूसरा है कि अगर मजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया कि मैं कॉग्निजेंस लूंगा. कॉग्निजेंस का मतलब हुआ यहाँ पे कि आई एम अप्लाइंग माई जुडिशियल माइंड एंड आई हैव डिसाइडेड, सिंस प्राइमा फेसाई केस अपीयर्स टू बी देयर, सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक अप फर्दर प्रोसीडिंग्स. ऑन द एप्लीकेशन ऑफ माई जुडिशियल माइंड, I have decided that prima facie facts are there, evidences are there, which warrants further proceedings. So I will take up further proceedings. तो मजिस्ट्रेट उसके बाद आगे के प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है. ठीक. तभी तो बोलेंगे ना कि उसने कॉग्निजेंस ले लिया. अब कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक बार जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो कॉग्निजेंस के बाद अब नेक्स्ट इशू ऑफ प्रोसेस. इशू ऑफ प्रोसेस को मैं शॉर्ट में आईपी लिख रहा हूं. ठीक है. इशू ऑफ प्रोसेस को शॉर्ट में मैंने आईपी लिखा है. इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब है इशू ऑफ एन ऑर्डर. प्रोसेस हियर इज एन ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट टू द अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर हिम. तो अगर मजिस्ट्रेट ने अक्यूज को ऑर्डर किया कि तुम मेरे सामने अपीयर हो जाओ इतने तारीख को, तो उसको आप बोलोगे समन्स, कि मजिस्ट्रेट ने अक्यूज को समन इशू किया. क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अक्यूज को यह कहा कि तुमको अपने आप इतने तारीख को मेरे सामने आना है. और अगर मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर इशू किया किसी पुलिस ऑफिसर को कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ, तो दैट इज इशू ऑफ वारंट. तो मजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस में या तो समन इशू करेगा या फिर वारंट इशू करेगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड. वारंट पे ही विल बी अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, एंड समन्स पे ही विल हैव टू अपीयर ऑन हिज ओन. बहुत सारे सिचुएशंस में और भी हो सकते हैं. अब मान लो अक्यूज अरेस्टेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर अरेस्ट ही वाज नॉट ग्रांटेड बेल, ही इज इन जेल ऑलरेडी. अक्यूज्ड अभी ऑलरेडी जेल में है. अब इशू प्रोसेस किया मजिस्ट्रेट ने, तो फिर वो तो जेल में है. तो जेल में है तो फिर उसका एक होता है कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन वारंट का. सेक्शन 267 सीआरपीसी एक प्रोडक्शन वारंट इशू होगा एंड जेल अथॉरिटी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अक्यूज्ड को इन पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर दीजिए. वो पुलिस ऑफिसर जेल से उसको निकाल कर, भगा के नहीं, सुप्रिंटेंडेंट से के परमिशन से निकाल कर कोर्ट में लेके आएंगे. और अगर वो ऑलरेडी भागा हुआ है तो पुलिस को ढूंढ के सर्च करके गिरफ्तार करके लाएगी. मान लो उसको बेल दे दिया था कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने बेल दे दिया था या किसी कोर्ट ने बेल दे दिया था, वो बेल पे फ्री है, तो वहां पे अरेस्ट वारंट नहीं इशू होगा, समन इशू होगा. अनलेस ही हैज वायलेटेड द बेल. अगर उसने बेल वायलेट कर दिया है तो अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा. सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इशू ऑफ प्रोसेस.
And what is the purpose of issue of process? Anyone? What is the purpose of issue of process? To get him before the magistrate. If I am the magistrate, and suppose, God forbid, if you are the accused, I have issued process against you. So the purpose of the issue of process is that you appear before me or you be arrested and brought before me on so and so date. ठीक? Now once you are brought before me, so what will I do? मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? किस लिए बुलाएगा? हाय हेलो करने के लिए तो नहीं बुला रहा, हेलो मिस्टर सो एंड सो और मिस सो एंड सो. ऑब्वियसली हेलो भी होगा, उसमें इम्प्लिसिट है, हेलो भी इम्प्लिसिट होगा, लेकिन मजाक कर रहा हूं. लेकिन उसको जब बुलाया जाएगा तो उसको बताया जाएगा, भाई लुक, दीज आर द एलिगेशंस अगेंस्ट यू, these are the allegations against you, and these are the evidentiary documents which have been presented by the prosecution before me. And he will be given the copies of the documents. जितने भी evidentiary documents prosecution ने produce किए हैं magistrate के सामने, सबकी एक एक कॉपी उसको दी जाएगी. Natural justice, so that he can take an effective defense for himself. तो natural justice के लिए कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ evidences हैं, तुम अपना डिफेंस जो भी तैयार करना है कर लो. तो इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद जब वो आएगा तो उसको एलिगेशंस बताए जाएंगे प्लस डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे. When he comes, he will be told the allegations against him and he will be handed over the prosecution documents. ठीक है, फॉर नेचुरल जस्टिस. उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसके बाद इट इज नॉट ऑन द सेम डे ऑब्वियसली. अब उसके बाद डॉक्यूमेंट तो दे दिया, डॉक्यूमेंट के बाद क्या? डॉक्यूमेंट देने के बाद अब एक ही स्टेज बचता है, एंड दैट इज ट्रायल. क्योंकि अब उसको क्या घर पे नाश्ता और खाना के लिए थोड़ी बुलाओगे कि चलो मेरे घर आ जाना डिनर के लिए. तो उसका क्या करोगे? अचार थोड़ी लगाओगे उसका. आया वो आपके सामने, आपने उसको प्राइमा फेसाई केस के जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, वो दे दिया और एलिगेशन बता दिया. तो अब उसके बाद तो उसके खिलाफ एविडेंसेस प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन, और वो खुद अपने फेवर में एविडेंसेस प्रूव करेगा. यही होना है. तो ट्रायल होना है, लेकिन ट्रायल के पहले चार्ज फ्रेम करना जरूरी होगा. एंड देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेज विल बी चार्ज फ्रेमिंग. और चार्ज फ्रेमिंग जब एक बार हो गया, या तो चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे उसको डिस्चार्ज कर दो, या तो चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे जब हियरिंग होगी और मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं नहीं इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई केस बन नहीं रहा, चार्ज नहीं बनना चाहिए, ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो डिस्चार्ज कर दो उसको. तो आइदर यू डिस्चार्ज हिम चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे, या फिर यू फ्रेम चार्ज. ठीक. और अगर चार्ज फ्रेम कर दिया, देन व्हाट? ट्रायल. आफ्टर दैट ट्रायल विल स्टार्ट. ट्रायल के लास्ट में जजमेंट आ जाएगा. इज दैट फाइन? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in the process of FIR and investigation. मैं इसको कोशिश करता हूँ छोटा कर दूं. अगर छोटा कर दूंगा तो शायद आपको दिख जाएगा. देखो, दिख रहा है, सारा दिख रहा है आपको. प्री ट्रायल में मैंने आपको बोला, ऑफेंस में लेफ्ट साइड में देखो FIR, उसके नीचे इन्वेस्टिगेशन, उसके नीचे पुलिस रिपोर्ट, उसके नीचे नो कॉग्निजेंस. अगर नो कॉग्निजेंस है तो प्रोटेस्ट पिटीशन, और अगर कॉग्निजेंस है तो फिर उसके बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस. इश्यू प्रोसेस के बाद allegations will be told and documents will be handed over to him, copies of the documents, and thereafter charge framing. At the stage of charge framing, either he can be discharged or charge can be framed, and once the charge has been framed, the trial will start, and after the trial obviously the judgment of acquittal or conviction. तो वो तो ट्रायल में बताऊंगा आपको.
वो तो ट्रायल वाला स्टेज है ना। इज दैट फाइन? ये आपका एफआईआर का सीक्वेंस है। इसमें देखना आप यहां पे ध्यान से, कॉग्निजेंस यहां हुआ है, कॉग्निजेंस यहां हुआ है, इशू प्रोसेस यहां हुआ है, और चार्ज फ्रेमिंग यहां हुआ है। बस दिमाग में रखिएगा इसको कि दीज आर द स्टेजेस ऑफ कॉग्निजेंस, इशू प्रोसेस एंड चार्ज फ्रेमिंग। ठीक। देन इफ यू सी, अब कंप्लेंट पे जाना है हमको, विल गो टू कंप्लेंट। तो मैं इसको फिर से बड़ा कर देता हूं। देखो, जब आप कंप्लेंट फाइल करोगे ना, कंप्लेंट इज फाइल्ड डायरेक्टली बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक, कंप्लेंट इज फाइल्ड डायरेक्टली बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो जब आप कंप्लेंट फाइल करोगे, व्हेन यू फाइल द कंप्लेंट, तो सबसे पहले होगा कॉग्निजेंस। First of all, it will be cognizance. The magistrate will take cognizance on the complaint. The magistrate will take cognizance on the complaint. After that, there is that complaint proceedings. After that, there is complaint proceedings. अभी मैं आपको प्रोविजन नंबर्स नहीं बता रहा हूं, ज़्यादा प्रोविजंस में जाऊंगा तो आप शायद अभी कंफ्यूज हो जाओ। आफ्टर दैट देयर इज कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट इज टेकन अंडर 190 क्लॉज 1A। कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट इज टेकन अंडर 190 क्लॉज 1B। कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस होगा 190 सबसेक्शन 1A। ठीक है। और कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होगा चैप्टर 15 में, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 200 टिल सेक्शन 203। दैट इज कॉल्ड कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के बाद या तो आपका कंप्लेंट डिसमिस होगा, आइदर योर कंप्लेंट विल बी डिसमिस्ड और योर कंप्लेंट इज नॉट डिसमिस्ड, सो इट विल बी इश्यू ऑफ प्रोसेस। अब इश्यू ऑफ प्रोसेस मैंने यहां पे बनाया, पुलिस रिपोर्ट में देखो कहां पे था, पुलिस रिपोर्ट में इधर था इश्यू ऑफ प्रोसेस, यहां पे इधर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, देयर आफ्टर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, देयर आफ्टर आइदर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट और इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक है। अब इसमें भी कई लोग बोलेंगे, आप कोर्ट में किसी एडवोकेट से बात करिए, with all regards to them, with all regards to them, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कहा जाता है कि जब आप समनिंग करते हो ना, तो वहां पे कहा जाएगा कि कॉग्निजेंस लिया गया। ठीक है। और जो उसके पहले का कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स का स्टेज था, उसको कहते हैं प्री समनिंग स्टेज इन एक्चुअल कोर्ट पार्लेंस, कोर्ट लैंग्वेज में। जो मैंने आपको बताया है ना कि कॉग्निजेंस यहां पे होता है, देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया कॉग्निजेंस यहां पे होता है, बट इफ यू टॉक टू अ लॉयर नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट नॉर्मली मेनी ऑफ देम विल टेल यू, मेनी ऑफ देम विथ ऑल रिस्पेक्ट टू देम, दे विल टेल यू कि कॉग्निजेंस यहां पे होगा जब इशू प्रोसेस होता है। ठीक है। आप में से भी कोई कोर्ट जाता होगा तो शायद आपको भी यही पता होगा, यही पता है कि कॉग्निजेंस इज एट द टाइम ऑफ इशू प्रोसेस, but that is wrong. That is wrong. सुप्रीम कोर्ट के innumerable judgments हैं in which the Supreme Court has highlighted that cognizance. I will tell you all those cases when I come to the topic in details. Supreme Court itself has highlighted that cognizance takes place before the complaint proceedings start. ठीक है। हाँ, ये है कि जो इशू ऑफ प्रोसेस होगा उस समय आप उस स्पेसिफिक अक्यूज्ड के खिलाफ प्रोसेस इशू करते हो। ये ध्यान रखना कि कंप्लेंट के समय दैट जिस अक्यूज्ड के खिलाफ आपने कंप्लेंट किया है, while the complaint proceedings are going on, he is not a party to the complaint proceedings. उसको अभी कोई नोटिस सर्व नहीं होगा।
ही इज फ्री, वो फ्री है, उसको कोई अभी नोटिस सर्व नहीं होगा. जब कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स खत्म हो गए एंड द कंप्लेंट इज नॉट डिसमिस्ड, नाउ द अक्यूज्ड कम्स इनटू पिक्चर एंड नाउ यू विल इश्यू प्रोसेस अगेंस्ट हिम. बट इफ यू आस्क मी थ्योरेटिकली कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस हुआ कब, तो मैं अभी भी वही बोलूंगा कि कॉग्निजेंस हुआ कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के पहले 190 क्लॉज 1A में. अब ये जो है ना, देखो, इश्यू प्रोसेस होता है 204 में, सेक्शन 204, ठीक है, और कॉग्निजेंस होता है 190 क्लॉज 1A में, 190 सब सेक्शन 1A. और कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होते हैं सेक्शन 200 से लेके 203 तक. 190 क्लॉज 1A 200 के पहले आएगा, नंबरिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं, प्रोसीडिंग्स के हिसाब से बोल रहा हूं. प्रोसीडिंग्स में 190 क्लॉज 1A विल कम बिफोर 200 प्रोसीडिंग्स में. तो फिर कॉग्निजेंस हुआ कब? 204 तो कॉग्निजेंस की बात ही नहीं कर रहा, 204 तो इश्यू प्रोसेस की बात कर रहा है. 204 is talking about issue of process. 204 is not talking about cognizance. And when you say issue of process, that is done under 204. Summons or warrant is issued under 204. So are we suggesting that we have to club together 204 with 190 clause 1A? Are we suggesting, if we say that summoning stage पे cognizance होता है, तो are we suggesting that 190 clause 1A has to be read with 204? My answer is no. That is wrong. Whenever a complaint is filed, first of all, the magistrate will apply his judicial mind to it, will see whether a prima facie case is made out or not, will see whether I have to take up the complaint proceedings or not, and if he decides to take up the complaint proceedings, then it will be said that he has taken cognizance of the offense, mind you, not of the accused, of the offense, cognizance of the offense. क्योंकि अभी accused पिक्चर में नहीं आएगा, accused को कोई नोटिस या समन अभी इश्यू नहीं होगा. एक बार जब कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स खत्म हो गए, कंप्लेंट डिसमिस नहीं हुआ, तब मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि मैं इस अक्यूज्ड को समन इशू करूंगा या उसके खिलाफ वारंट इशू करूंगा. वहां पे अक्यूज पिक्चर में आता है. तो आपको अगर बहुत बोलना है तो आप ये कह सकते हैं, हालांकि आई डू नॉट अग्री टू दैट ऑल्सो, बट आप बहुत कहना है तो कह सकते हैं कि उस अक्यूज के खिलाफ कॉग्निजेंस इस स्टेज पे होगा. लेकिन ऑफेंस का कॉग्निजेंस तो 190 क्लॉज 1A पे ही होगा. ऑफेंस का कॉग्निजेंस तो 190 क्लॉज 1A पे ही होगा. अब बहुत बोलने का मन है आपको तो कह सकते हैं कि समनिंग के स्टेज पे उस अक्यूज के खिलाफ कॉग्निजेंस हो गया. लेकिन ये थोड़ा अटपटा है कि ऑफेंस का कॉग्निजेंस पहले हुआ, अक्यूज का कॉग्निजेंस अब हुआ, तो इन दोनों को बाइफरकेट तो हम नहीं कर सकते. तो इन माय अंडरस्टैंडिंग कॉग्निजेंस टेक्स प्लेस बिफोर द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, देयर आफ्टर द इश्यू प्रोसेस विल टेक प्लेस. दैट इज द नेक्स्ट स्टेज. I'll tell you the judgments also on this when I come to the topic in details. Issue process के बाद क्या? वही documents, allegations plus documents, allegations plus documents के बाद क्या? Charge framing, charge framing के बाद क्या? Charge framing के बाद क्या? Trial. उसके बाद फिर आप पहुंच गए ट्रायल पे. इज दैट फाइन? ठीक है, देख लो, मैं छोटा कर दिया. सबसे पहले कंप्लेंट फाइल हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लेंट वाज फाइल्ड, देन कॉग्निजेंस वाज टेकन अंडर 190 क्लॉज 1A, देन कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स वाज टेकन, देन either the complaint is dismissed under 203, 203 में dismissal होता है, या फिर issue process was done under 204, either summons or warrant was issued, and thereafter when the accused appears before the court, so he will be told the allegations and documents will be given to him for natural justice, for his defense, and thereafter the charge will be framed, and after the charge framing, ultimately we move on to trial. Ultimately we move on to trial. ठीक है, after the trial judgment,
जजमेंट के बाद क्या? अगर अक्विट कर दिया तो कहानी खत्म, फिर वो अपील में जाएगा। अगर जाने का मन होगा, कौन जाएगा? प्रोसिक्यूशन जाएगा। अक्विटल हुआ है ना, तो अक्यूज क्यों जाएगा? और अक्यूज नहीं जाएगा, प्रोसिक्यूशन जाएगा। और अगर कन्विक्ट कर दिया तो हियरिंग ऑन सेंटेंस होगा, फिर उसमें प्रीवियस कन्विक्शन वगैरह चेक किया जाएगा। सेंटेंस अवॉर्ड हो गया, उसके बाद अक्यूज्ड चाहे तो अपील में चला जाए और इधर सेंटेंस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। दैट इज हाउ इट हैपेंस। इज दैट फाइन? इंफॉर्मेशन की बात करो, अगर फिर बड़ा कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इंफॉर्मेशन की बात करो तो ये छोटा सा प्रोसीडिंग है। एंड नॉर्मली लेट मी टेल यू, इंफॉर्मेशन पे मैजिस्ट्रेट नॉर्मली कॉग्निजेंस लेते नहीं है, दो दे हैव पावर टू डू सो, but there are chances that allegations of bias can be imposed upon the magistrate. So normally in actual practice, the magistrates do not get into taking cognizance upon information. Information समझ रहे हैं? I am a magistrate. I get the information of the commission of any offense. I get the information of commission of an offense, and I, on that information, I myself take cognizance. मुझे कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं आया, मेरे पास कोई राइटिंग में कंप्लेंट नहीं आया, बल्कि मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया, किसी ने फोन करके बता दिया, किसी ने मुझे लेटर लिख दिया, किसी ने चिल्ला के जाते जाते बोल दिया मुझे, अरे मजिस्ट्रेट साहब क्या आप आराम कर रहे हो, जाओ वहां पे क्राइम हो गया, जाके देखो। ठीक, मुझे ऐसे इंफॉर्मेशन मिल गया। या फिर टेलीविजन में देख लिया मैंने कुछ, अखबार में पढ़ लिया कुछ। ठीक, इस तरह का कुछ सिचुएशन हो सकता है। अपने आप मैं जा रहा था, मेरे सामने ही क्राइम हो गया, मैंने वहीं पे देख लिया। ठीक, तो मुझे वैसे इंफॉर्मेशन मिल गया। उस इंफॉर्मेशन पे मैं खुद कॉग्निजेंस लेके प्रोसीडिंग से स्टार्ट कर सकता हूं। दैट इज अ वेरी वाइड पावर एंड आई थिंक इट शुड बी यूज्ड प्रॉपरली बाय द मैजिस्ट्रेट्स. Magistrates do refrain because the allegations of bias can be there, कि तुम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके बाद खिलाफ कॉग्निजेंस ले रहे हो। कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, कोई कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स हुए नहीं, मैं डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। लेकिन मैजिस्ट्रेट्स को प्रॉपर केसेस में इस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। आई थिंक दे शुड एक्सरसाइज दिस पावर इन प्रॉपर केसेस। एनीवेज, अब इंफॉर्मेशन पे क्या होगा? इंफॉर्मेशन ही may get from any source. इंफॉर्मेशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निजेंस, और इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस होता है 190 क्लॉज 1C में। ऑन इंफॉर्मेशन, माइंड यू, इंफॉर्मेशन इज नॉट अ कंप्लेंट एंड इज नॉट एन FIR और पुलिस रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन कोई कंप्लेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं है, उसके अलावा कुछ और। ठीक है, कॉग्निजेंस के बाद सीधा इश्यू ऑफ प्रोसेस, बीच में और कोई प्रोसीडिंग नहीं होगा, सीधा इश्यू प्रोसेस, बीच में कंप्लेंट प्रोसीडिंग भी नहीं होगा, सीधा इश्यू प्रोसेस। ठीक, इश्यू प्रोसेस के बाद एलिगेशंस प्लस डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद चार्ज, चार्ज के बाद ट्रायल। अच्छा, ट्रायल तो काफी नीचे है ना। चार्ज के बाद ट्रायल। ठीक है, तो सीधा कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस के बाद इश्यू प्रोसेस, टेलिंग द एलिगेशंस, हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट्स, एंड देयर आफ्टर चार्ज, एंड चार्ज के बाद सीधा ट्रायल। चार्ज पे डिस्चार्ज भी कर सकते हो, यू कैन डिस्चार्ज ऑल्सो। अगर डिस्चार्ज नहीं किया, चार्ज फ्रेम कर दिया, तो फिर सीधा ट्रायल। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप देख रहे हो कितना छोटा प्रोसीडिंग है। मतलब मैं मैजिस्ट्रेट हूं और मुझे आप
पसंद नहीं आए। हरदीप, हरदीप, तो हरदीप मुझे पसंद नहीं आई, डोंट माइंड प्लीज। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये मेरी दुश्मन है। मैंने वैसे ही कोई झूठा फेक ट्रेल ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट किया और हरदीप के खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया। मैंने वैसे ही झूठा ट्रेल ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट किया और हरदीप के खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेके सीधा इशू प्रोसेस करके अरेस्ट करवा के या फिर समन इशू करके बुलाया, एलिगेशन बताए, कुछ डॉक्यूमेंट है तो दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया। जो भी इंफॉर्मेशन था वही दे दिया इसको, और उसके बाद चार्ज फ्रेम करके ट्रायल शुरू कर दिया। तो मैं तो अपनी दुश्मनी निकाल लूंगा ना। तब तो जितने दुश्मन हैं मेरे सबका लिस्ट बना के रखूं मैं अपने पास कि आज इसको प्रोसिक्यूट करूंगा, कल उसको करूंगा, परसों उसको करूंगा। तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस ऑफ मिसयूज, there are chances of misuse, and maybe that is why, since the allegation can be there upon me, she can allege an allegation, revision में जा सकती है मेरे खिलाफ कि ये अपने पर्सनल बायस की वजह से मेरे ऊपर प्रोसीडिंग कर रहा है। शायद इसलिए मैजिस्ट्रेट्स 190 क्लॉज 1C वाले पावर को ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है। इसमें एक सेफगार्ड भी है। सेफगार्ड ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। सेफगार्ड ये है कि मैं इंफॉर्मेशन पे अगर कॉग्निजेंस लेता हूं हरदीप के खिलाफ, तो जब हरदीप मेरे पास अपीयर होंगी, व्हेन शी अपीयर्स बिफोर मी आफ्टर दिस इशू प्रोसेस, सो आई विल सेंड हर टू द CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड CJM विल टेल हर दैट यू हैव अ चॉइस, दैट इफ यू वांट द प्रोसिक्यूशन बिफोर सम अदर मैजिस्ट्रेट, she has a choice that she can get her case transferred to some other magistrate. And if she says yes, then CJM, as per his choice, his discretion, he can send my case to some other magistrate, send this case, her case to some other magistrate. तो यहाँ पे मैं जो सोच रहा हूँ कि ट्रायल कर लूंगा और कन्विक्ट कर दूंगा, वो ऑप्शन मेरा खत्म हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रायल मैं नहीं करने वाला, ट्रायल कोई और करने वाला है, क्योंकि CJM साहब वहाँ पे केस ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सेक्शन 191 में ये चॉइस अक्यूज को दिया गया है। ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगा आपको, 191 पढ़ाऊंगा मैं। बहुत कुछ है CRPC, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो पार्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रोमांटिक ऑल्सो। कहते हैं रोमांटिसिज्म ऑफ द सब्जेक्ट, द म्यूजिक ऑफ द सब्जेक्ट, उसी को मैं रोमांटिसिज्म ऑफ द सब्जेक्ट बोलता हूँ। So this entire area has it, and there are so many interlinkages, there are so many minute points in this which you will enjoy a lot when we get into the details of all that. अब अल्टीमेटली इन सब के बाद हो क्या रहा है, सबके बाद लास्ट में तो ट्रायल ही हो रहा है। सारे प्रोसीडिंग्स करने के बाद लास्ट में तो वी आर डूइंग ट्रायल ओनली। ठीक, सो दिस वाज प्री ट्रायल। इसी पूरे प्रोसेस में मैं यहां लिख देता हूं, इसी पूरे प्रोसेस में अरेस्ट भी हो सकता है, इसी पूरे प्रोसेस में बेल का भी प्रोविजन हो सकता है, इसी पूरे प्रोसेस में सर्च एंड सीजर भी हो सकता है। सो दीज आर सम प्रोसीडिंग्स which also may take place. Arrest of the accused, bail of the accused, search and seizure of some place. नहीं, ये सारी चीजें भी हो सकती है इसी पूरे प्रोसेस में। फाइन, तो ये भी आपके टॉपिक्स हैं, अरेस्ट, बेल, सर्च एंड सीजर, दीज आर ऑल्सो योर टॉपिक्स। तो व्हेनेवर, अब जैसे अरेस्ट वारंट ही इशू कर दिया मैजिस्ट्रेट ने, इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया, तो अरेस्ट वारंट इशू किया तो अक्यूज को अरेस्ट तो किया जाएगा ना, तो ही विल बी अरेस्टेड। आफ्टर दैट ही मे अप्लाई फॉर बेल। उसी तरह से पुलिस अगर FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस खुद भी अरेस्ट कर सकता है। सपोज इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पावर होता है, तो इट कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें फिर आपको मैजिस्ट्रेट के परमिशन से ही आप अरेस्ट कर सकते हो। इज इट फाइन? उसमें भी एक दो सिचुएशंस है जहाँ पे आप अरेस्ट कर सकते हो इवन विदाउट वारंट। अगर वो अपना सही नाम पता वगैरह नहीं बता रहा ना, तो वहाँ पे आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो
in order to without warrant in order to ascertain as to who he is. ठीक? So even in non-cognizable, in such cases you can arrest. So वहाँ पे they are talking about a provision of arrest in a non-cognizable case also without warrant in order to ascertain the correct name and address of the person concerned. ठीक है? So this was the pre-trial part which I have just told you. अब इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉग्निजेंस लिखा है ना, देखो कहाँ गया, मैंने इधर कॉग्निजेंस लिखा है ना, ये कॉग्निजेंस, या इधर भी कॉग्निजेंस है, या इधर भी कॉग्निजेंस है. तो कॉग्निजेंस के साथ एक और टॉपिक चाहेगा. एक तो हो गया कॉग्निजेंस, सेक्शन 190 अप टिल 199, सेक्शन 190 अप टिल 199, दैट इज कॉग्निजेंस. एक और टॉपिक जाएगा, that is a topic called limitation for cognizance. It is 467 till 473, I believe. 467 till 473 CRPC. Limitation for cognizance. कुछ offenses हैं जिनमें आप एक limitation period CRPC दे रहा है, उसके अंदर ही cognizance हो सकता है. ठीक? वो 3 साल तक punishable offenses में limitation है. 3 साल से ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस है तब कोई लिमिटेशन नहीं होता, तब कभी भी ले सकते हो कॉग्निजेंस. लेकिन 3 साल तक पनिशेबल ऑफेंस है अगर, सो देयर इज अ लिमिटेशन पीरियड. अलग अलग तरह के लिमिटेशन पीरियड है, दैट इज 467 टिल 473. तो वो भी साथ में पढ़ा जाएगा. दैट विल ऑल्सो बी रेड टुगेदर. व्हेन यू टॉक अबाउट कॉग्निजेंस, लिमिटेशन फॉर कॉग्निजेंस ऑल्सो हैज टू बी रेड टुगेदर. कोई कह रहा है कि सेक्शन 41 का बेनिफिट क्या है जिससे पुलिस भी बेल दे सकती है. पुलिस बेल नहीं देता है, पुलिस बेल नहीं देंगे. दे डोंट हैव द पावर टू गिव बेल एक्सेप्टिंग इन द बेलेबल ऑफेंसेस. बेलेबल ऑफेंसेस के अलावा पुलिस बेल नहीं देता है, उनके पास पावर नहीं है. मैजिस्ट्रेट कैन गिव द बेल, और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट कैन गिव द बेल, and in special leave you can go to the Supreme Court to obtain the bail. But police cannot give bail in non-bailable offences. हाँ, non-bailable offense का investigation किया और पुलिस found that it is bailable तो एक अलग बात है. But otherwise non-bailable में police does not grant bail. Bail can be given only by the magistrate. उसके sections हैं अलग अलग. 437 में magistrate दे सकते हैं, 439 में कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट दे सकता है. एनीवेज, यू सी, व्हेनेवर यू स्टार्ट टू रीड अ सब्जेक्ट, नो, आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, CRPC हो, IPC हो, एविडेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, SRA, कुछ भी हो, always first few days make it a point that you make yourself familiar with the topics and the constitutional and the jurisprudential essence of that, plus a bit of understanding of the rule of interpretation. सबसे पहला आपका काम होगा कि टॉपिक से अपने आप को फेमिलियर करिए, बार बार टॉपिक्स को देखो, फिर उसके बाद बेयर एक्ट, जैसे ये बेयर एक्ट है ना आपका, इसके कंटेंट्स को फ्लिप करो. अब जो मैंने यहाँ लिखवाया आपको अभी, तो वो बेयर एक्ट में आज का टास्क आपका ये हो कि घर जाके इसमें देखिए कि कहाँ पे क्या दे रखा है. ठीक, जो मैंने नहीं भी लिखवाया उसको भी देखो कि कहाँ पे क्या टॉपिक दे रखा है. तो उससे आपको फिर सब्जेक्ट से फेमिलियरिटी होती है. उसके बाद उस सब्जेक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल और जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस समझो आप, और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन समझो. सबसे पहले इतना आपको करना होता है. उसके बाद आप टॉपिक वाइज 1 by 1 आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन पहले दिन से ही अगर आप सेक्शन 1 से स्टार्ट कर दोगे, और दूसरी बात कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये तरीका गलत है. हमेशा टॉपिकल स्टडी करना चाहिए. अब जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूँगा, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम FIR से स्टार्ट करेंगे 154 से. तो उसके लिए सेक्शन 1 में जाने की क्या ज़रूरत है. 1, 2 तो चलो वैसे भी हमको जानना चाहिए, जनरली वी शुड नो, बट टॉपिक के हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ो. उस टॉपिक में जितने भी सेक्शन CRPC के हैं, जितने भी सेक्शंस हैं,
या फिर एविडेंस का कोई टॉपिक आ जाए, सेक्शन आ जाए, आईपीसी का कोई सेक्शन आ जाए, या किसी और लॉ का कोई सेक्शन आ जाए, सबको एक साथ करके पढ़ो, तब जाके आपका पीटी की भी तैयारी अच्छी होगी और मेंस की भी तैयारी अच्छी होगी। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पढ़ेंगे, मतलब सेक्शन 1 से स्टार्ट करके 484 तक पूरा सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में पढ़ा, तो आपको इंटरलिंकेजेस और इंट्रालिंकेजेस समझ में नहीं आएंगे, तो आपका टॉपिक का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं होगा। आप सेक्शन पढ़ लोगे, देखो एक होता है टॉपिक पढ़ना, एक होता है सेक्शन पढ़ना। सेक्शन पढ़ लिया आपने, 1 से लेके 484 तक सब कर लिया, तो आपने सारे सेक्शंस पढ़ लिए, 10 बार पढ़ लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव तैयार नहीं हो पाएगा। टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव तैयार करना, फॉर एग्जांपल अब जैसे बेल पढ़ोगे, तो बेल के प्रोविजंस 436 टिल 450 में है, बेल के प्रोविजंस 436 टिल 450 में है, लेकिन बेल का एक और प्रोविजन है 167 क्लाउज 2 प्रोवाइजो, ठीक। बेल का एक और प्रोविजन है 389 बेल इन अपील, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड बेल इन अपील, 395 बेल इन रेफरेंस, 397 बेल इन रिवीजन। So when you study bail as a topic, so you'll be doing not only from 436 till 450, you'll be doing 167 also, you'll be doing 389 also, you'll be doing 395 also, you'll be doing 397 also. That is a comprehensive study. That is what is called comprehensive study. So I always recommend that you must, and मेरा तरीका भी वैसा ही है पढ़ाने का, you must go topic wise. जो सबसे मुश्किल टॉपिक है सब्जेक्ट का, उसको सबसे पहले उठाओ। मतलब मेरा तरीका सिंपल है, आपको सबसे पहले शुरू में तो थोड़ा बहुत हवा पानी देता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत आप फैमिलियर हो जाए। हवा पानी मतलब फैमिलियर करना, टॉपिक वॉपिक बताना। उसके बाद अचानक से आपको शूट करके ऊपर ले जाऊँगा, और इस लेवल पे आप चलते जाएंगे। जितने मुश्किल टॉपिक से पहले पढ़ाऊँगा, जब आप एक बार यहाँ बैठ गए, यहाँ आप बैठ गए, तो यहाँ से तो ये छोटे वाले टॉपिक्स तो अपने आप समझ में आएंगे आपको, नहीं? वहाँ से देखो नीचे झांक रहे हैं, कितना आसान लग रहा है। मतलब वंस यू हैव राइजन टू दैट लेवल, नो, इसीलिए देखोगे सबसे पहले सीपीसी में भी मैं सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन, तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, मुश्किल वो भी है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। फिर वहाँ से अचानक रेस जुडिकाटा में ले जाऊँगा, जो सबसे मुश्किल है। जब रेस जुडिकाटा पे जाके पीक पे बैठ गए, तो सीपीसी की बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। अब समझाना मेरा काम है ना, इट इज़ माई जॉब टू एक्सप्लेन इट टू यू, इट इज़ माई जॉब टू मेक रेस जुडिकाटा अंडरस्टैंडेबल टू यू। तो वो तो मेरे पास आए तो मैं समझाऊंगा ना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह इसमें भी सबसे पहले मैं शुरू के कुछ टॉपिक्स कराने के बाद ले जाऊंगा आपको इन्वेस्टिगेशन में सीधा। इन्वेस्टिगेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एंड कंपैरेटिवली डिफिकल्ट ऑल्सो। फिर आपको ले जाऊंगा अरेस्ट में, जो थोड़ा आसान टॉपिक है। फिर बेल में ले जाऊंगा, जो थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली। हालांकि सीआरपीसी मुझे कहीं मुश्किल तो समझ में आता नहीं, सारे का सारा बहुत आसान है। प्रोसीजरल लॉ इज नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट अगर कुछ है तो आईपीसी है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए हो सकता है। आपको सबसे आसान आईपीसी लगता होगा, बताइए। कारण है कि आपके कॉलेजेस में आईपीसी के बड़े अच्छे टीचर्स होते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है आपको, तो शायद इसलिए आपको आईपीसी बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आईपीसी में एक रिस्क हमेशा होता है। आईपीसी में इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। So even if you know the law, even if you know the interpretation of that law, when they give you practical situations, no, so there are chances that you may still commit a mistake. That is not normally the case with subjects like CRPC, evidence, etc. CPC में कुछ टॉपिक्स है जहां आप फिर भी गलती कर सकते हैं, जैसे रेस जुडिकाटा एंड ऑल, लेकिन सारे टॉपिक्स वैसे नहीं है। CRPC में तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। IPC इज एप्लीकेशन बेस्ड। तो आईपीसी में जब वो आपको सिचुएशन दे देंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे एक सिचुएशन दे दिया, एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे एक सिचुएशन दे दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि वो प्राइवेट डिफेंस का सिचुएशन था, मर्डर का सिचुएशन था, कल्पेबल होमिसाइड का सिचुएशन था, या फिर नो ऑफेंस था। अब अगर आप कहते हो कि प्राइवेट डिफेंस था ही नहीं, तो इट इज मर्डर,
अगर आप कहते हो कि मर्डर था लेकिन प्राइवेट डिफेंस था, तो इट इज नो ऑफेंस। अगर आप कहते हो मर्डर था, प्राइवेट डिफेंस भी था, लेकिन एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, तो इट इज कल्पेबल होमिसाइड। सो दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। सो वहां पे देयर आर चांसेस दैट यू मे स्टिल कमिट मिस्टेक। फैक्ट्स का जरा सा गलत अप्रेजल कर लिया, गलती हो जाएगी आपसे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आईपीसी को बहुत ध्यान से, बहुत, इट इज अ वेरी वल्नरेबल सब्जेक्ट, उसको बहुत ध्यान से अपने, पूरा आईपीसी मुश्किल नहीं है, पूरे आईपीसी में 15-20 ऐसे एरियाज होंगे जहां पे ये गलतियां आपसे हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दोज एरियाज। इज दैट फाइन? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, प्राइवेट डिफेंस, murder, culpable homicide, criminal conspiracy, abetment, these kinds of topics. There are criminal attempt. These are some topics, many more are there, जहाँ पे आप जानते हुए भी गलती कर दोगे, तो वहाँ पे आईपीसी का थोड़ा ध्यान रखिए। सीआरपीसी वगैरह बहुत मुश्किल नहीं है, दे आर कंपैरेटिवली ईजियर। ठीक है, सो कमिंग बैक नाउ, हमेशा यही अप्रोच लेके चलो और कोशिश करो कि क्लास में जब बैठे हो तो फुल कंसंट्रेशन, फुलेस्ट कंसंट्रेशन, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ द टीचर शुड गो बियॉन्ड योर माइंड। तो उसके लिए यू हैव टू sacrifice your other thoughts. Many people I find when you are sitting in the class, no, so I find you are lost. I don't know where you are lost. अगर आपकी नकल करके मैं भी लॉस्ट होने लग जाऊं तब क्या होगा? आई विल ऑल्सो वाइल टीचिंग गेट लॉस्ट इन समथिंग एल्स, तो हो गया, दुनिया ही बदल जाएगी फिर। तो इफ आई डोंट गेट लॉस्ट देन वाई शुड यू गेट लॉस्ट इन समथिंग? सो नो अदर थॉट शुड कम वाइल यू आर सिटिंग इन द क्लास। एंड व्हेन यू गेट ओवर विद द क्लास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 60, 70, 80% of the things that was discussed in the class should be there in your mind, and it will be there if you concentrate it will be there. And then there should be a hurry in your mind after the class that I should get time immediately so that I can revise. वो एक हड़बड़ी होनी चाहिए दिमाग में कि मैं तुरंत इसको रिवाइज करूंगा। तो वो जैसे ही घर पहुंचोगे, जैसे ही घर पहुंचोगे या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, अब रोड पे पैदल जा रहे हो तो मत रिवाइज करने लग जाना, मतलब दिमाग में कर लो बेशक, लेकिन कॉपी मत खोल लेना, टक्कर हो जाएगी, कोई गाड़ी वाड़ी पलट जाएगी, कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना। लेकिन हाँ, मेट्रो में जा रहे हो या फिर बस में जा रहे हो या फिर घर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम ये करो कि जो भी पढ़ा है क्लास में उसको तुरंत रिवाइज करो। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगना है आपको रिवाइज करने में, बाकी व्यवस्थित रिवीजन तो बाद में कर लेना, लेकिन इमीडिएट तुरंत रिवाइज करो उसको। उसके बाद बेशक चाय पीना है, खाना खाना है, जो करना है करो। तो होगा क्या कि जो आपने पिक्टोग्राफिकली यहाँ पे सुना और देखा, वो तुरंत यहाँ पे पिक्टोग्राफिक मेमोरी में सेट हो जाएगा, वो कभी भूलोगे नहीं आप। उसके बाद अपना खाना वाना खाओ, आराम करो, जो भी करना है करो। उसके बाद फिर व्यवस्थित रूप से एक बार फिर से बैठो ढंग से रिवाइज करने के लिए। तो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। जब टॉपिक हो जाए तो हर 15-20 दिन पे उस टॉपिक को एक बार फिर रिवाइज कर लो। पहले रिवीजन में आपको 2 घंटे लग गए, दूसरे रिवीजन में शायद आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, तीसरे रिवीजन में शायद 2 मिनट लगेंगे। तो फिर से रिवाइज कर लो का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा 2 घंटा फिर से लगाओ। अभी एक बार रिवाइज कर लिया तो 90% तो यहाँ सेट हो गया ना। तो मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट में नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद फिर तीसरी बार चौथी बार करोगे तो शायद 2-2 मिनट 5-5 मिनट में हो जाएगा वो टॉपिक। तो दैट इज हाउ यू हैव टू। और उसके बाद तो रेगुलर आपके दिमाग में चल रहा होगा वो, तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एग्जाम के पहले एक बार कर लो, हो गया। नाउ आई वाज सपोज्ड टू बी टेलिंग यू अबाउट ट्रायल, नो। देखो, ट्रायल में कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन टॉपिक्स के पहले आई विल टेल यू what is trial about. Trial is about proving or disproving the guilt of the accused, है ना।
prosecution will try to prove the guilt, so it is proving or disproving guilt of the accused. ठीक, और यहाँ पे याद रखना द इंडियन एविडेंस एक्ट कम्स इनटू पिक्चर. यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट भी लगता है और सीआरपीसी भी लगता है. मैकेनिज्म ऑफ ट्रायल क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स इन ट्रायल क्या होगा, वो सीआरपीसी बताएगा. और कौन से फैक्ट्स प्रूव कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो, कौन से रेलेवेंट फैक्ट्स है, व्हाट एविडेंसेस एंड फैक्ट्स आर एडमिसिबल, डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव करोगे, विटनेस कौन बन सकता है, व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, कैन अ विटनेस बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल दोज थिंग्स विल कम फ्रॉम द एविडेंस एक्ट. ठीक, अब ट्रायल में बेसिकली इट इज अबाउट द केस इज ओपन्ड. केस कौन खोलेगा, कोर्ट के सामने केस कौन खोलेगा, हु विल ओपन द केस. Obviously, the burden of proof lies upon the prosecution, so the prosecution will open the case. That look, these are the facts that I have, these are the evidences that I have, and this is how I'll prove the guilt of the accused. So case is opened. उसके बाद फिर आपका चार्ज फ्रेमिंग वगैरह होगा, वो तो पहले ही मैंने बता दिया आपको. उसके बाद सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा. मैं शॉर्ट में पीई लिख रहा हूँ, दैट इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस. प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब होगा तो प्रोसिक्यूशन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस को प्रोड्यूस करेगा और उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा. फिर उसके बाद ऑपोजिट पार्टी चाहे डिफेंस तो क्रॉस करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, और अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो उसी विटनेस का फिर से री एग्जामिनेशन करेगा. सो दिस इज हाउ द वेरासिटी, द ट्रूथफुलनेस ऑफ द विटनेसेस इज एस्टैब्लिश्ड. Examination in chief, cross examination and re-examination of the witnesses. जब ये सारा हो गया तो फिर prosecution will rest its case. prosecution कह देगा कि भाई मेरे पास और evidences नहीं है. तो prosecution will rest its case का मतलब है prosecution is saying that I do not have any more evidences. I am done with all my evidences. After that, what next? After that, there is something called the examination of the accused under section 313. So 313 CRPC में accused का examination होता है. accused examine, मैं आपको बिल्कुल broad बता रहा हूँ. अलग अलग ट्रायल मेथड्स में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. मैं एक जनरल सा आपको बता रहा हूँ. different trial methods have got different stages. I'm giving you only a general broad idea. इसके बाद हो सकता है कि अक्यूज को अक्विट कर दीजिए. अक्यूज में भी अक्विटेड, अक्विटल. हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन को, कोर्ट को लगा कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है, डिफेंस के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट वहीं पे अक्विटल कर देगा. या फिर कोर्ट को लगा कि नहीं प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस सफिशिएंट हैं और अगर डिफेंस उसको रिबट ना करे तो कन्विक्शन हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ कोर्ट शिफ्ट कर देगा डिफेंस के ऊपर. सो आफ्टर दैट 313 के एग्जामिनेशन के बाद अक्विटल हो सकता है या फिर डिफेंस एविडेंस के लिए कोर्ट कह सकता है. ना उसके बाद डिफेंस विल प्रोड्यूस इट्स ओन एविडेंसेस. देखो नॉर्मली डिफेंस के पास एविडेंसेस होते नहीं है, वो बस आर्ग्यूमेंट्स होता है उनके पास. नॉर्मली डिफेंस के पास एविडेंसेस ज़्यादा कुछ होते नहीं है, लेकिन अगर हैं एलिबाई वगैरह ऐसा कोई भी एविडेंस है तो डिफेंस रेज कर सकता है. तो डिफेंस एविडेंस की बारी आएगी तो यहाँ भी डिफेंस विटनेसेस अपीयर होंगे, डॉक्यूमेंट्स लाए जाएंगे और फिर विटनेसेस का वही एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन. क्रॉस और री जरूरी नहीं होता, चीफ जरूरी है. क्रॉस और री तो पार्टी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है. कोई कह रहा है सर अगर ऐसे सीआरपीसी पढ़ाई जाने वाली है तो फिर तो मजा आ जाएगा. तो इसी ने लिखा सर, यू आर, लॉ इज एन आर्ट एंड यू आर एन आर्टिस्ट.
That is so sweet of you. Thank you. Thank you for the encouragement. तो ये हो गया आपका. उसके बाद फिर डिफेंस के भी एविडेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे. तो डिफेंस विल से दैट आई पुट माय केस टू रेस्ट. तो डिफेंस का केस क्लोज हो गया. रेस्ट लिख दिया मतलब आई पुट माय केस टू रेस्ट. उसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ है तो उस पर दोनों पार्ट नहीं. इसके बाद क्या होगा? प्रोसिक्यूशन विल सम अप द केस. प्रोसिक्यूशन सम्स अप द केस. प्रोसिक्यूशन विल सम अप द केस. मतलब प्रोसिक्यूशन बताएगा कि मेरे हिसाब से देखो मैंने ये एविडेंसेस प्रूव कर दिए और मेरा केस इस तरह से प्रूव हो गया. उसके बाद अगर डिफेंस कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेज करता है, लॉ पे कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे. पॉइंट ऑफ लॉ ना भी रेज करे तब भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं दोनों पार्टीज में. आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद जजमेंट होगा. जजमेंट कैन बी अक्विटल ऑल्सो एंड कन्विक्शन ऑल्सो. और जजमेंट में अगर कन्विक्शन हो गया तो फिर हियरिंग ऑन सेंटेंस भी होगा. तो जजमेंट में अगर कन्विक्शन हो गया तो हियरिंग ऑन सेंटेंस भी होगा. और हियरिंग ऑन सेंटेंस के समय इट विल बी सीन वेदर द अक्यूज वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड और नॉट. ऑल दोज थिंग्स विल बी सीन. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल्स राइट नाउ, क्योंकि कई ऑफेंसेस हैं जिसमें एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस हो सकता है. जैसे चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आईपीसी. चैप्टर 12 इज अबाउट काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स एंड चैप्टर 17 इज अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो इन दोनों केसेस में सेक्शन 75 आईपीसी में एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है. तो अगर प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव किया जाए तो सेंटेंस कैन गेट एनहांस्ड ऑल्सो. But we are not concerned with that right now, so let us not get confused about that right now. देखो ये तो हो गया ट्रायल का प्रोसेस. दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ ट्रायल. मैंने छोटा कर दिया, देखना चाहो तो देख लो. दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ ट्रायल, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस. इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे प्रोसीडिंग्स हैं जो ट्रायल के स्टेज के समय होते हैं. देर आर मेनी प्रोसीडिंग्स विच हैपन एट द स्टेज ऑफ ट्रायल और मे बी जस्ट बिफोर द ट्रायल. अब वो प्रोसीडिंग्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक तो होगा jurisdiction, which court will conduct the trial. तो ये इसका भी तो टॉपिक होगा. चैप्टर 13 सेक्शन 170 4, 5, 6, 177 till 189. That is chapter 13, jurisdiction of the court. उस केस का ट्रायल किस कोर्ट में होगा? ठीक. सो दैट इज jurisdiction of the court. उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ केसेस. ठीक है. So this also has to be there. ट्रायल के बीच में कोई लॉ पॉइंट पे अगर बात आ जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस पॉइंट को डिसाइड नहीं कर रखा है तो रेफरेंस. अगर कोई ऑर्डर पास हो जाए ट्रायल के बीच में, उस ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन कर सकते हैं. तो ये ट्रायल के बीच में यू कैन गो फॉर रिवीजन ऑल्सो. ठीक है. वो ट्रायल के पहले भी रिवीजन होता है. जैसे डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट हो गया, उसके खिलाफ यू कैन गो फॉर रिवीजन. तो रिवीजन इज नॉट लिमिटेड ओनली टू ट्रायल, इट कैन बी डन बिफोर ट्रायल ऑल्सो. ठीक. उसके अलावा तो मेन तो यही 3-4 टॉपिक्स है. एक आपको वो भी है प्ली बार्गेनिंग. प्ली बार्गेनिंग नॉर्मली विल हैपन बिफोर ट्रायल. सेक्शन 265A ऑनवर्ड्स प्ली बार्गेनिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका. उसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं जैसे एविडेंसेस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल. इंक्वायरी और ट्रायल के समय एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड होंगे, उस पे कुछ सेक्शंस हैं.
evidences in inquiry and trial. These are sections related to recording of evidences, that is 272 till 299 of the CRPC. उसके अलावा general provisions related to inquiry and trial. ये बहुत important area है. This is section 300 till 327. General provisions related to inquiry and trial, section 300 till 327. बहुत important area है. इसी में बहुत प्राइम आपके टॉपिक्स हैं, जैसे 311 है, 313 है, 319 है, 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है, 319 इज एडिशनल प्रोसिक्यूशन, 323 है, 325 है, तो ये बहुत 327 है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स. तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट 306 है, तो देर 304 है, कल ही किसी ने बताया था ना 304 वो लीगल एड से रिलेटेड. तो ये सब 300 से लेके 327 के बीच में आते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. ठीक. तो जब आप ट्रायल की बात करोगे तो ब्रॉडली दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक. ट्रायल में एक और बात ध्यान रखना, अगर एक कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल चल रहा है, ध्यान रखना, इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल इज गोइंग ऑन and the accused after conviction has been given death sentence, accused को conviction के बाद death sentence दिया है. Suppose it was a murder case, court of session conducted the trial and after the trial the court gave the accused death sentence. ठीक. तो वो death sentence directly execute नहीं हो सकता. That death sentence has to be sent to the high court for confirmation. तो अगर कन्विक्शन के बाद डेथ सेंटेंस दिया है कोर्ट ऑफ सेशन ने, तो एक और प्रोसीडिंग आ जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स. कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स. ठीक. दिस इज 366 टिल 371. 371 नहीं है, 373 1 है. अच्छा, 372 से तो अपील स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. 371, 372 से तो अपील स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. 366 टिल 371. ये आपका ट्रायल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं विच आई विल बी टेलिंग यू. जहाँ तक पोस्ट ट्रायल का सवाल है, उसमें दो ही चीज़ें हैं, आप अपने आप भी लिख सकते हो. पोस्ट ट्रायल इज रिलेटेड टू अपील एंड एग्जीक्यूशन. दो टॉपिक्स हैं, अपील और एग्जीक्यूशन. अपील होगा 372 टिल 394, अपील इज 372 टिल 394 एंड एग्जीक्यूशन इज 413 टिल 435, 413 से 435 तक. दैट इज पोस्ट ट्रायल. इसके अलावा और भी कुछ प्रोविजंस हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, एक टॉपिक है इरेगुलरिटीज इन प्रोसीडिंग्स. कहीं भी किसी प्रोसीडिंग में कुछ इरेगुलरिटी होगी तो उसके लिए 460, 461 टिल 466 कुछ प्रोविजंस है. वहाँ पे उस इरेगुलरिटी को क्योर करने की बात की गई है. तो इरेगुलरिटीज इन प्रोसीडिंग्स. उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है विच इज मेंटेनेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. अब उसको मैं ट्रायल, प्री ट्रायल, पोस्ट ट्रायल में तो नहीं डालूंगा. मेंटेनेंस इज अ टोटली डिफरेंट प्रोसीडिंग, तो उसको इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग की तरह देखेंगे. एंड दैट इज चैप्टर 9 सेक्शंस 125 टिल 128, 125 से लेकर 128 तक. मेंटेनेंस है ना, मैट्रिमोनियल मैटर्स से रिलेटेड मेंटेनेंस, बच्चों का मेंटेनेंस, पेरेंट्स का मेंटेनेंस, वो सब. उसके अलावा एक और है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति और व्यवस्था. दैट इज चैप्टर 10 सेक्शन 129, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी.
मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये धारा 144 वगैरह नहीं लगाते, तो वो इसी के अंदर लगता है। तो ये है 129 till 148, 129 till 148, ठीक है। कहीं भी देखते हैं आप आजकल तो खूब सुनते होंगे, कहीं भी पुलिस को कोई गड़बड़ी होने की आशंका हुई, कहीं पे प्रोटेस्ट होने की आशंका हुई तो 148 144 लगाते हैं ना, तो वो 144 इसी चैप्टर में है। उसके अलावा एक है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस 149 till 153, 149 till 153। फिर इसके अलावा एक छोटा टॉपिक है वारंट और एक और है समन्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके अलावा एक और है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन PROCLAMATION, प्रोक्लेमेशन PROCLAMA, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, ठीक है। ब्रॉडली दीज आर द मेन टॉपिक्स, और भी बहुत सारे हैं, वो कल की क्लास में बता दूंगा, अनसाउंड माइंड और वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कल की क्लास में 2-4 टॉपिक्स और बताऊंगा आपको। सो दीज आर द ब्रॉड एरियाज ऑफ CRPC। Now what things out of these I will be discussing, most of them I will be discussing with you। आपको आज का टारगेट मेरा मेन था, वो जो शुरू में मैंने ब्रेकअप बताया ना, वो जो प्री ट्रायल में, वो मेरा मेन टारगेट था। अब एक बार मैं प्री ट्रायल वाला वो ब्रेकअप फिर से रिपीट कर दूंगा, हो सकेगा तो कल की क्लास में ही कर दूंगा, सो दैट आपकी फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। So tomorrow hopefully I'll be starting with constitutional and jurisprudential. First of all I have to give you the list of topics, the sequence in which I'll discuss, and after that I'll tell you the constitutional and jurisprudential essence। ठीक है, तो कल सबसे पहले आपको टॉपिक्स एक बार फिर बताऊंगा जिस सीक्वेंस में मैं डिक्टेट कराने वाला हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।